السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، مسجدوں کا کردار۔ کیا مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے یا ایک مضبوط اور کامیاب معاشرے کی بنیاد؟ آئیے اس بیان کو سنتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے سبق پر غور کرتے ہیں۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مسجدیں صرف 5 وقت کی اذان اور نماز کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، مسجدیں ایک اچھا سماج تشکیل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں ایک اچھا معاشرہ تشکیل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں ایک اچھی قوم بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تمہیں بنائی گئی ہیں۔ مسجدیں صرف عبادت گاہ نہیں ہوتی ہیں، مسجدیں ضرورت گاہ ہوتی ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو مسجد تھی، مسجد نبی، آج پوری دنیا میں جو اسلام کا جھنڈا اور اسلام کا علم، اسلام کا فریرہ لہرا رہا ہے، وہ برکت ہے اس مسجد نبوی کی، جہاں پر میرے حضور بیٹھ کر کے لوگوں کو انصاف دلایا کرتے تھے، جس مسجد میں بیٹھ کر کے میرے حضور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، جس مسجد میں بیٹھ کر کے میرے حضور بیماروں کو علاج دیا کرتے تھے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے، اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اور کہتے ہیں کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج یوم الجمعہ ہے۔ جمعہ کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے، اور یہ عید کا دن ہے۔ جمعہ کا دن سب سے افضل اور سب سے اہم دن مانا گیا ہے ہماری شریعت میں، اسلام میں۔ آج کے دن ان مسلمانوں کو بھی اللہ کے گھر میں آنا نصیب ہو جاتا ہے جو پورے ہفتے کبھی بھول کے بھی اللہ کے گھر میں آنا گوارا نہیں کرتے۔ ایسے مسلمانوں کو بھی جمعہ کے دن مسجد میں آنا نصیب ہو جاتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن سارے مسلمان جو مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، آخر کیوں آتے ہیں؟ کس لیے آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے مسجدوں میں آنے کی، اکٹھا ہونے کی؟ بہت سارے مسلمان جو 5 وقتہ نمازی ہیں، وہ بھی جو عام 5 وقتہ نمازیں اپنے محلے کی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، اپنے گاؤں کی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن وہ مسلمان بھی، وہ 5 وقتہ نمازی بھی شہر کی بڑی مسجد جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ ہر کوئی جمعہ کے دن شہر کی جامع مسجد اور بڑی مسجد میں جمع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اکٹھا ہوتے ہیں؟ آپ کہو گے کہ بھئی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم کہیں گے بھئی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ یہاں بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ آپ کہو گے کہ کیونکہ ہماری شریعت نے یہی کہا ہے کہ جمعہ اور عیدین کی جو نماز ہے یہ محلے کی، گاؤں کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نہیں ہو سکتی ہے، بڑی مسجد میں، شہر کی جامع مسجد میں یہ نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی۔ سوال ہوتا ہے تو شریعت نے یہ حکم تمہیں کیوں دیا؟ بھائی نماز نماز ہے،
अल्लाह की इबादत ही तो है। आप अल्लाह की इबादत कहीं भी कर लीजिए, और उम्मते मोहम्मद के लिए तो पूरी रुए जमीन को मस्जिद बना दिया गया है। आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं भी नमाज पढ़ने का मतलब ये नहीं कि अब आप चौराहों पे नमाज पढ़ेंगे, सड़कों को जाम करके नमाज पढ़ेंगे, शाहराहे आम पे नमाज पढ़ेंगे, ऐसी जगहों पे नमाज पढ़ेंगे कि जहां दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचती हो। यह मतलब नहीं है। आप ऐसी जगह पे नमाज हरगिज नहीं पढ़ सकते जहां पर किसी दूसरे इंसान को, कभी दूसरे आदमी को तकलीफ पहुंचती हो, क्योंकि हमारा दीन तकलीफ पहुंचाने के लिए आया ही नहीं है। हमारा दीन तो लोगों को आसानियां देने के लिए आया है। हमारा दीन सड़क जाम करने के लिए नहीं आया है, रास्ते बंद करने के लिए नहीं आया है। हमारा मजहब तो रास्ते खोलने के लिए आया है, लोगों के लिए रास्ते कुशादा करने के लिए आया है। इसलिए नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, आप शाहराहों पे नमाज पढ़ेंगे, आप चौराहों को जाम करके नमाज पढ़ेंगे, यह मतलब नहीं है। लेकिन बहरहाल जो ऐसी कोई जगह हो कि जहां पर किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कुछ डिस्टर्ब ना हो, आप पूरी दुनिया में, पूरी रुए जमीन पे कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो जब पूरी रुए जमीन पर हमें कहीं भी नमाज पढ़ने की इजाजत है, तो जुमा के दिन हमें मस्जिद में आने के लिए क्यों कहा जाता है? एक सवाल है। और वो भी मोहल्ले और छोटी छोटी गांव की जो मस्जिदें, उनमें भी नहीं पढ़ सकते। आपको शहर की बड़ी जामा मस्जिद में इकट्ठा होना है। सारे मुसलमानों को इकट्ठा होकर के जमात के साथ नमाज पढ़नी है। क्यों? आखिर वजह क्या है इसकी? आपने कभी इस पे गौर किया है? अच्छा, हमारे उलमा से आपने 12 ये सुना होगा कि जमात की बहुत बड़ी फजीलत है। हत्ता कि आप सुनन और नवाफिल जो है, सुन्नत और नफल जो है, ये आप अपने घर में पढ़िए, बड़ी फजीलत है। घरों को भी आपको कब्रिस्तान नहीं बनाना है, घरों में भी नमाज पढ़नी है। ज्यादा बेहतर यही है कि सुन्नत और नफल जो है ये घरों में पढ़ी जाए। ये जो आज के मुसलमान हैं कि जो सिर्फ 2 रकात जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं और 2 रकात पढ़ करके फौरन भागते हैं, और इस तरह भागते हैं जैसे जेल में बंद थे, कैद में थे। इतनी जल्दी होती है कि वो जिधर सलाम फेरा, इमाम साहब ने दुआ मांगी और फौरन ये भागने लगे। उधुम मच जाती है पूरी मस्जिद में। ये ऐसा क्यों होता है? ये सिलसिला कहां से चला? ये असल में पहले लोग ऐसे ही करते थे कि जुमा की नमाज आते थे, मस्जिदों में पढ़ते थे, बाकी नमाजें जाकर के सुन्नत और नफल जो है वो जाकर के अपने घरों में पढ़ते थे। लेकिन ये मुसलमान अब नहीं समझता है 2 ही रकात जुमा की है और हमें सिर्फ जुमा हमने पढ़ लिया, 2 रकात पढ़ ली, हमारी नमाज कंप्लीट हो गई। अगर आप अपने घरों में जुमा पढ़ने के बाद जाकर के नफल और सुन्नत नहीं पढ़ते हैं तो आपकी नमाज अधूरी रह जाती है, यह नमाज कंप्लीट नहीं है। अगर घरों में नहीं पढ़ सकते तो पूरी मस्जिद में ही पढ़ करके सारी नमाज आपको जानी है। तो नफल और सुन्नत घरों में पढ़ना है, लेकिन फर्ज नमाज आपको मस्जिद में आके पढ़नी है, जमात के साथ पढ़नी है। जमात के साथ क्यों पढ़नी है? आप कहोगे जमात की बहुत फजीलत है। हमारे उलमा बयान करते हैं कि मस्जिद में जमात के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज घर में तन्हा पढ़ी जाने वाली नमाज से 27 गुना अफजल होती है। 27 दर्जे उसका सवाब बढ़ जाता है। कितने? 27 दर्जा। एक इंसान घर में तन्हा नमाज पढ़ता है और दूसरा इंसान आकर के फर्ज नमाज जमात के साथ, लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ खड़े होकर के जमात के साथ नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसको 27 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाता है। तो ये सवाब आखिर इतना ज्यादा बढ़ क्यों जाता है? भाई नमाज नमाज है, चाहे तन्हा पढ़े, चाहे घर में पढ़े या मस्जिद में पढ़े, हम पर नमाज फर्ज है, हम नमाज पढ़ रहे हैं। तो फिर घर में पढ़े तो 1 दर्जा सिर्फ सवाब मिलता है, मस्जिद में आकर के लोगों के साथ पढ़े तो 27 दर्जा सवाब बढ़ जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है, हो सकता है घर में तुम नमाज पढ़ो, तन्हा नमाज पढ़ो, सजदा करो तो अपने भाई का बुग़्ज़ सीने में छुपा करके करो।
घर में नमाज पढ़ो तो हो सकता है दिल में बेईमानी लेकर के नमाज पढ़ो, घर में नमाज पढ़ो तो खानदान रिश्तेदार की नफरत दिल में लेकर के नमाज पढ़ो। और जो नमाज सीने में मुसलमान का बुग़्ज़ रख करके पढ़ी जाए, जो सजदा सीने में नफरत छुपा के की जाए, जो सजदा सीने में अदावत छुपा के की जाए, जो सजदा सीने में बुग़्ज़ और हसद और कीना छुपा के किया जाए, वो सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है, वो सजदा इंसान के मुंह पे मार दिया जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ठीक है नफल और सुन्नत आप अपने घरों में पढ़ लो, लेकिन फर्ज नमाज जो हमने तुम पर वाजिब की है वो आकर के मेरी मस्जिदों में, मेरे घर में आकर के मुसलमानों के साथ पढ़ो। अल्लाह इससे क्या होगा? फरमाया इससे यह होगा कि जब तुम जमात के साथ नमाज पढ़ोगे तो जमात में खड़े होकर के तुम्हारे कंधे अपने भाई के कंधे से मिलेंगे, तुम्हारी एड़ियां अपने भाई के एड़ियों से मिलेंगी, तुम अपने भाई से चिमट करके खड़े होगे, अपने भाई से मिल करके खड़े होगे, जाहिर में तुम्हारे कंधे मिलेंगे, मैं तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दूंगा, आपस में अंदर से तुम्हारा दिल भी मिल जाएगा। इसलिए आओ जमात के साथ नमाज पढ़ो। जमात का मकसद क्या है? मस्जिदों में हम लोगों को इकट्ठा होने का हुक्म इसलिए दिया जाता है ताकि जो तुम्हारे, जब तुम अपने मस्जिदों में इकट्ठा होगे और अल्लाह के घर में आओगे, तुम्हारा पड़ोसी भी होगा, तुम्हारा खानदान भी होगा, तुम्हारा रिश्तेदार भी होगा, तुम्हारा भाई भी होगा, तुम्हारा बाप भी होगा, तुम्हारा बेटा भी होगा, तुम्हारा दोस्त भी होगा, सब होंगे। उनके साथ जब तुम नमाज पढ़ोगे और उनके कंधों से तुम्हारे कंधे मिलेंगे तो तुम्हारे दिलों से नफरत निकल जाएगी, तुम्हारे दिलों से बुग़्ज़ निकल जाएगा, तुम्हारे दिलों से हसद निकल जाएगा, तुम्हारे दिलों से कीना निकल जाएगा। ये जो आपस में दुश्मनियां हैं, ये जो आपस में एक दूसरे से अदावतें हैं, ये सारी अदावतें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारा सीना पाक होगा, अल्लाह तुम्हें 27 दर्जा बढ़ा करके सवाब अता फरमाएगा। देखिए नमाज की एक सूरत है जाहिरी सूरत, जाहिरी नमाज, और एक है बातिनी नमाज। जाहिरी नमाज के लिए हमें आपको पहले अपने आप को पाक करना होता है, कपड़े पाक हो, हमारे जिस्म पाक हो, और अगर जिस्म पाक है, कपड़े पाक है, फिर भी आपको कहा जाता है कि आप उजू कर लो। हदसे असगर भी यानी छोटी भी कोई जर्रा बराबर भी आपके ऊपर कोई नापाकी ना हो, आप जिस्म भी पाक करेंगे, कपड़े भी पाक करेंगे, जगह भी पाक करेंगे और उसके बाद फिर उजू करेंगे ताकि हदसे असगर भी आपको लाहिक ना हो, छोटी सी छोटी नजासत भी, हल्की सी हल्की नजासत भी आपके ऊपर ना रहे। यह है जाहिरी नमाज की शर्त। जाहिरी नमाज के लिए आपको अपना जिस्म, अपना बदन, अपना कपड़ा साफ करना होता है। जाहिरी नमाज के लिए तन साफ करना होता है और बातिनी नमाज के लिए मन साफ करना होता है। जाहिरी नमाज के लिए जिस तरह जाहिरी वुजू है, इसी तरह बातिनी नमाज के लिए बातिनी वुजू भी है। और बातिनी वुजू क्या है? दिल का साफ होना, मन का साफ होना। इसलिए अगर आपके दिल में बुग़्ज़ और कीना छुपा हुआ है किसी मुसलमान के खिलाफ, किसी इंसान के खिलाफ, अगर आपके दिल में अदावत और दुश्मनी छुपी हुई है, अगर आपके दिल में बुग़्ज़ है और फिर सजदा कर रहे हैं, यह सजदा कभी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। आपका मन साफ होना चाहिए। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इसीलिए मस्जिदों में मुसलमानों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया है। तुम्हें जो कहा गया कि नमाज के लिए आओ, जमात के लिए इकट्ठा हो, उसकी वजह यही है कि आप मस्जिद में आए और मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं, मान लीजिए अब्दुल गफूर फजर की नमाज में नहीं आए, एक मिसाल दे रहा हूं, जमात में आने के लिए कहा गया, इसकी वजह क्या है? क्यों हमें जमात का हुक्म दिया गया है? इसकी वजह यह है कि मान लीजिए 5 वक्त की नमाजें तुम पर फर्ज हैं। अब फजर में अब्दुल गफूर आपके मोहल्ले का नहीं आया, जोहर में देखा, जोहर में भी अब्दुल गफूर नहीं आया, असर में देखा, असर में भी अब्दुल गफूर नहीं आया, मगरिब में देखा, मगरिब में भी आपके मोहल्ले का अब्दुल गफूर नहीं आया। तो इशा में जो मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, जो ट्रस्टी हैं, जो मुतवल्ली हैं, जो मोहल्ले के सरकर्दा लोग हैं, ये इशा में अब्दुल गफूर के घर जाएंगे और पूछेंगे भाई क्या हुआ,
न फजर में आए, न जुहर में आए, न असर में आए, न मगरिब में आए, पूरा दिन आप गायब रहे, आखिर वजह क्या है, मजबूरी क्या है? फिर अगर वो बीमार होगा तो ये उसकी बीमारी के इलाज का इंतजाम करेंगे, अगर वो परेशान होगा तो उसकी परेशानी दूर करेंगे, अगर वो किसी तकलीफ में होगा उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करेंगे। वो किसी भी दर्द में मुब्तला है, किसी भी तरह परेशान है, तो ये सारे लोग जाकर के उसके दर्द का मुदावा करेंगे, उसकी परेशानी दूर करेंगे। ये है मस्जिद में तुम्हें बुलाने का मकसद। मस्जिदें सिर्फ 5 वक्त की अजान और नमाज के लिए नहीं बनाई गई हैं। मस्जिदें एक अच्छा समाज तश्कील करने के लिए बनाई गई हैं। मस्जिदें एक अच्छा मुआशरा तश्कील करने के लिए बनाई गई हैं। मस्जिदें एक अच्छी कौम बनाने के लिए बनाई गई हैं। मस्जिदें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम्हें बनाई गई हैं। मस्जिदें सिर्फ 5 वक्त नमाज और अजान के लिए नहीं बनाई गई। मस्जिदों में इकट्ठे होने का मकसद यही है कि तुम एक साथ मिलो, एक साथ इकट्ठे हो और एक दूसरे के दुख दर्द को सुनो, एक दूसरे की खुशियों में गमों में शामिल हो और एक दूसरे की हाल खैरियत मालूम करो। अगर कोई तुम्हारे मोहल्ले में, कोई तुम्हारे गांव में परेशान हाल है तो सारे लोग मिल करके जाएंगे, उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे। किसी का घर गिर जाएगा तो उसका घर बनवाएंगे, किसी पर जुल्म हो रहा होगा तो उसको इंसाफ दिलाएंगे। ये सब मस्जिदों का काम है। मस्जिदें सिर्फ इबादत गाह नहीं होती हैं, मस्जिदें जरूरत गाह होती हैं। जरूरत गाह देखो ना, मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में गैर मुस्लिम आकर के कहता है, या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूं, मुझे खाना दीजिए। उसके खाने का इंतजाम मेरे हुजूर ने मस्जिद नबवी से फरमाया था। मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, आज पूरी दुनिया में जो इस्लाम का झंडा और इस्लाम का अलम, इस्लाम का फुरेरा लहरा रहा है, वो बरकत है उस मस्जिद नबवी की, जहां पर मेरे हुजूर बैठ करके लोगों को इंसाफ दिलाया करते थे, जिस मस्जिद में बैठ करके मेरे हुजूर गरीबों की मदद किया करते थे, जिस मस्जिद में बैठ करके मेरे हुजूर बीमारों को इलाज दिया करते थे, जिस मस्जिद में बैठ करके मेरे हुजूर लोगों को इंसाफ दिया करते थे, जिस मस्जिद में बैठ करके मेरे हुजूर गैर मुस्लिमों तक को खाना खिलाया करते थे। तुम्हारी मस्जिदें तो इतनी महदूद हो गई हैं कि सिर्फ अजान हुई, नमाज हुई और ताला लग गया। और बाज ऐसे लोग होते हैं कि मस्जिदें तो आसानियां देने के लिए थी, लेकिन आज अगर जमात हो जाए और बाद में कोई बेचारा किसी मजबूरी की वजह से जो जमात में शामिल है हो सका बाद में पहुंच जाए तो उसके लिए पंखे तक बंद कर दिए जाते। आपको पता है कि ये जिनके लिए आप पंखे बंद कर रहे हैं वो अल्लाह के घर के मेहमान हैं। मस्जिद के जो जिम्मेदारान होते हैं, जो मुतवल्ली होते हैं, जो कमेटी के लोग होते हैं, वो होते असल में अल्लाह ने उनको अपने घर की नौकरी दी होती है। वो नौकर होकर के अल्लाह के घर का बादशाह बनना चाहते हैं, अल्लाह के घर का मालिक बनने की कोशिश करते हैं। जबकि जो लोग मस्जिदों में आते हैं, आपके घर में अगर कोई आ जाए तो उसके लिए यही रवैया उसके साथ करोगे कि उसके लिए पंखा बंद कर दोगे, लाइट बंद कर दोगे और कहोगे नहीं चलो निकलो, वहां चलो, उसको ऐसे ही करोगे उसके साथ। तुम अपने घर आए हुए मेहमान के साथ ये रवैया नहीं कर सकते, ये तुम्हारी बदअखलाकी मानी जाती है। तो जो अल्लाह के घर में आया है उसके साथ ऐसा सलूक आप कैसे कर सकते हैं? वो अल्लाह का मेहमान है। तुम कहते हो हमारे पास इतना बजट नहीं कि हम 24 घंटा एसी चला सकें, हमारे पास इतना बजट नहीं कि हम इतने हरदम पंखा चला सकें। मैं कहता हूं हजारों मैं ऐसी मस्जिदों को जानता हूं जिनके पास लाखों लाख बजट बैंक में पड़ा सड़ रहा है। मस्जिदों का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है कि भैया इमारत खड़ी करो, अच्छा से अच्छा पत्थर लगाओ, कुमकुमे लगाओ, पेंटिंग कराओ, शेंटिंग कराओ, बस यही मकसद है मस्जिदों का। बाकी मस्जिद के अगल बगल रहने वाले भूख से मर रहे हैं, मर जाएं। वो बीमारियों में झुलस रहे हैं, जूझ रहे हैं, वो मर जाएं बीमारियों से जूझ करके। मस्जिद को कोई फिक्र नहीं है। मस्जिद का मतलब आपने क्या समझा है? मस्जिदें सिर्फ अजान और नमाज के लिए नहीं है। मैं फिर यही कहूंगा, अजान और नमाज तो कहीं भी हो सकती है। पूरी रूए जमीन अल्लाह की जो है ये खाली पड़ी है और अल्लाह ने अपने नबी की उम्मत के लिए पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया है। कहीं से भी नमाज पढ़ो, नमाज अदा हो जाएगी, इबादत कहीं से भी करो, हो जाएगी। लेकिन मस्जिदें कायम की जाती हैं और मस्जिदों में तुम्हें इकट्ठा किया जाता है। उसकी वजह यही है कि तुम अगल बगल देखो, अड़ोस पड़ोस में गौर करो, कौन परेशान हाल है, कौन मुश्किलों में पड़ा हुआ है, उसकी आप जाकर के मदद करो।
اور تم پیسے اکٹھا کرو, ایک بجٹ بناؤ, ایک کمیٹی بناؤ, اس میں سارے پیسے اکٹھا ہوں گے اور مسجدوں سے اس پیسے سے غریبوں کی مدد کی جائے گی, انسانیت کی خدمت کی جائے گی, بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے گا, پیاسوں کو پانی پلایا جائے گا, لوگوں کے لیے راستے کھولے جائیں گے, آسانیاں پیدا کی جائیں گی. کوئی مسلمان غریب ہے وہ علاج نہیں کروا سکتا, اس کے علاج کا انتظام کیا جائے گا, اس کا علاج کروایا جائے گا. کسی کے خلاف کوئی غلط مقدمہ ہو گیا ہے, کسی کے خلاف کوئی ناانصافی ہو گئی ہے, آپ اس مسجد کے ذریعے سے اس کا مقدمہ لڑیں گے, اپنے مسلمان بھائی کو اس مقدمے سے نکالیں گے, نجات دلائیں گے. یہ مقصد ہے مسجدوں کا. تو میرے دوستو, آپ نے بیان سنا ہوگا, آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. مسجد صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ ایمان اور اصلاح معاشرہ کا مرکز ہے. آپ اس موضوع کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں, اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ تعالی ہمیں مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کرنے اور ان کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.